Amen. 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 And God bless you, Sister Epsim, for this wonderful song. I open my voice now. Thank you. प्रभु का बहुत धन्यवाद हो Thank you. इस अच्छे गीत के लिए, Sister Epsim. God bless you. And we could hear this song very clearly. Now we can all mute our microphones, please, so that we don't have any echo or disturbance. Sister Epsim, you may kindly switch off the mic. Thank you, Sister Epsim. God bless you. Sister Sangeeta, can you please call Sister Poonam to, because her mic is still on, you can see it on the screen, and if she has got any problems to log in, then probably she can log out. For today, we will send her the recording. For next time, she can check her system and log back, because otherwise, if her microphone is on, then we will get disturbance in the whole program. Sister Sangeeta, can you hear me? What I said, please. Okay, brother. मैं उनको करती हूँ. आप उनको बोल दीजिए लॉग आउट कर लें अभी नेक्स्ट वीक के लिए, फिर देन दे कैन प्रॉपरली लग इन, बिकॉज देयर इज टू मच डिस्टर्बेंस कमिंग. Yes, yes. Okay, thank you, sister. Then you can switch off your mic now, Sister Sangeeta. God bless you. Yes. Thank you, sir. God bless you. We thank God for this time once again. प्रभु का धन्यवाद हो. समय काफ़ी हमारा निकल गया है आज डिस्टर्बेंस के चक्कर में, पर बात यह है कि अभी हमारे पास समय कि अब हम डायरेक्टली प्रभु के वचन में, परमेश्वर के वचन में जाएंगे. और मैंने सिस्टर संगीता को बोल दिया है कि सिस्टर पूनम को एडवाइस करें कि अभी वो लॉग आउट कर लें, क्योंकि उनके साथ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है. पर किसी का भी माइक ऑन रहेगा तो डिस्टर्बेंस आएगी, और किसी सबको डिस्टर्बेंस फिर तंग करेगी और सुनाई नहीं देगा. तो वी होप दे हैव अंडरस्टूड. और अब हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे, और हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उसने एक बारी फिर हमको ये मौका दिया. और मेरे साथ जो ट्रांसलेशन हिंदी का करेंगे भाई जसविंदर ट्रांसलेशन करेंगे. सो आई विल बी बाय ग्रेस ऑफ गॉड, please pray for me in your hearts in the spirit, that may the Lord bless his word, and may the Lord use me and brother Jaswinder for speaking the word and also for translating the word. So I will be speaking in English and brother Jaswinder will be translating in Hindi. Now brother Jaswinder, you can translate whatever has been said. प्रभु आप सभी भाई बहनों को बहुत आशीष बरकत दे. और आज मैं भाई एमैनुअल इंग्लिश में प्रचार करेंगे प्रभु का शब्द, प्रभु का वचन, और भाई जसविंदर जो है वो हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे. और आप सब प्रार्थना करें कि भाई जसविंदर और मैं जो है प्रभु का कलाम दे सके, प्रभु के अनुग्रह से ट्रांसलेट हो, और प्रभु के कलाम के द्वारा हम सब आशीष पाएं. आमीन. Amen. Amen. Brother Jaswinder, just to request you, either you have to come close to the microphone or you have to speak louder, because your voice is slightly weak for everybody to listen in Hindi. Thank you, brother. Okay, brother, I will try my mic. Yeah, try to keep your mic close, or increase your volume if you can. Yeah, sure, I will try. Yeah, thank you. Now, now we are going into the Word of God. There are few thoughts from the Word of God that we are going to meditate upon today. हम प्रभु के आज वचन में जाएंगे, और प्रभु के कलाम से, प्रभु के वचन से हम देखेंगे और सीखेंगे कि प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम क्या कहता है. आमीन. Amen. We know the Word of God is the final authority for everything that we do towards our salvation, towards our faith, towards our spiritual practices and faith. हम जानते हैं कि प्रभु का कलाम ही जो है वो हमारे लिए संपूर्णता है और आखिरी कलाम है, फाइनल कलाम है हमारी रूहानी जिंदगी के लिए, दुनियावी जिंदगी के लिए. हमारा फाइनल
जो है वो प्रभु का कलाम ही होता है। Amen. 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 That's why Bible say whatever we do in work and deed, we should do it in the name of Lord Jesus Christ. इसीलिए प्रभु का कलाम कहता है कि वचन में या काम में जो कुछ भी करो वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। आमीन। And we know who is Lord Jesus Christ. और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। We know from the book of Gospel of John chapter 1 and verse 14 that the word of God became flesh. हम यूहन्ना की अंजील और उसका एक अध्याय से हम ये जानते हैं कि परमेश्वर जो वचन था वही देहधारी हुआ, वही उसने ही शरीर लिया। हालेलुया। John 1:1 says, first verse says, who is God and who is word, and John 1:14 says that the same word which was God and with God, he became flesh. यूहन्ना की अंजील जो है और उसका एक अध्याय हमें बताता है कि वचन क्या था, वचन कौन था, और यूहन्ना की अंजील और 14 आयत हमें बताती है कि जो वचन है वो देहधारी हुआ, वो कौन हुआ, जो वचन था उसने शरीर लिया, वो कौन था। This is the substance, this is the substance, this is the main thought behind the Bible, to know who is God and who is Jesus Christ. ये जो है बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है बाइबल का कि परमेश्वर कौन है, कौन परमेश्वर है और कौन जो है शरीर लेके आया। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है बाइबल का। आमीन। Jesus Christ and Almighty God are not two different persons. परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह ये दो अलग-अलग शख्सियतें नहीं है। They are not different personalities. ये दो अलग-अलग शख्सियतें नहीं हैं, अलग व्यक्ति नहीं है दो। God has been talking in whole of the Old Testament to Israel, hear, O Israel, I am one God. प्रभु परमेश्वर पुराने नियम में यही पूरे पुराने नियम में कहता है, ओ इज़राइल मैं तुम्हारा एकमात्र एक ही परमेश्वर हूँ। In the Old Testament, when all the prophets and all the men of God and all the children of God, they used to pray the God of Abraham, Isaac and Jacob. पुराने नियम के सभी नबियों ने और उनके वंशों ने और उनकी औलादों ने भी ऐसे ही प्रार्थना की है कि हमारे परमेश्वर यहोवा अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर। आमीन। They did not pray to gods, they pray to God. वो मतलब परमेश्वर को ही प्रार्थना करते थे, वो कोई अलग परमेश्वर को प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वो परमेश्वर के आगे ही प्रार्थना करते थे। Many people in many churches in today's Christian world think that the Father and the Son and the Holy Spirit are three different persons. आज बहुत सारी संस्थाएं, डिनोमिनेशन जो हैं वो ये प्रचार करती हैं, मानती है, प्रार्थना करती है कि पिता अलग है, पुत्र अलग है और पवित्र आत्मा अलग है। If we don't have a clear understanding and revelation about the Godhead, we cannot be on the right track to understand the Word of God. जब तक हमको एक परमेश्वर नहीं समझ आता, जब तक हमें एक परमेश्वर की तालीम नहीं समझ आती, तब तक हम परमेश्वर के सही रास्ते पे नहीं चल सकते। If we have to go somewhere, if we have to go somewhere and reach somewhere, we try to take a road or a street or a way to reach to our correct destination. अगर हम अपनी जिंदगी में कहीं जाना चाहते हैं, कहीं सफर करना चाहते हैं, तो हमारे पास उस जगह का बिल्कुल सही नक्शा, सही ट्रैक, सही रास्ता होना चाहिए। If we don't know the way, we will never reach our destination. अगर हमें रास्ता ही नहीं पता तो हम अपनी मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे? And if we come to know after traveling 1 mile, 2 mile or 3 miles, अगर हम कहीं जा रहे हैं, हमने 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर रास्ता तय कर लिया है और हमें पता चल गया कि हमने इतना सफर तय कर लिया है, and if we suddenly realize we have been on a wrong way, then we must change our road. We must change the track. और तभी हमें पता चलता है कि जो हमने रास्ता इतना तय कर लिया है ये गलत है,
ये गलत तय कर लिया है हमने रास्ता, अचानक हमें पता चले कि गलत रास्ता तय कर लिया है। Somebody tells us, listen, mister, you are going on a wrong road. This road will not take you where you want to go. अगर कोई हमें रोक के समझाए कि मेरे भाई कि जो 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 रास्ते पे आप चले हुए हो, ये रास्ता उस मंजिल पे नहीं जाता जहां तुम जाना चाहते हो, ये गलत रास्ता है। And we can tell them, we can tell that person, thank you very much for telling us that we are on the wrong way, but we still continue on that road. अगर देखिए, हम उसका धन्यवाद करना चाहिए, धन्यवाद करेंगे कि भाई तेरा धन्यवाद कि तूने हमें गाइड कर दिया, बता दिया कि गलत रास्ता है। ये नहीं है कि हम जिद करके उस रास्ते पे चलते रहेंगे। And if we have thanked him, we have understood we are on the wrong track, but we still continue on the wrong track, then what is the use of, where is the correction? अगर हम धन्यवाद भी करें कि धन्यवाद कि हमें तूने गाइड किया, सही रास्ता बताया, हमें बताया तूने ये गलत रास्ता है, धन्यवाद करने के बावजूद भी हम उसी रास्ते पे चलते रहे, तो ऐसे धन्यवाद का कोई फायदा नहीं है। This is how it is happening in many churches in the world. यही जो हो रहा है बहुत सारी दुनिया की संस्थाओं में, बहुत सारे चर्चों में ये हो रहा है। Every church is holding the same Bible in their hand. सभी चर्चों ने, सभी विश्वासियों ने वो सेम ही बाइबल और सेम ही कलाम पकड़ा हुआ है। All the preachers are preaching the same Jesus. और सभी प्रचारक जो हैं वो एक ही यीशु का प्रचार कर रहे हैं। And all are claiming we are going to heaven. और सभी ये दावा करते हैं कि हम स्वर्ग जा रहे हैं। Holding the same Bible on a wrong track will not take us to heaven. वही बाइबल पकड़ के आप गलत रास्ते पे चल के आप मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। Reciting the name of Jesus Christ will not take us to heaven if our track is wrong. अगर हमारा रास्ता ही गलत है तो हमें प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। We cannot set our own track ourselves. हम अपनी मर्जी से ये रास्ता तय नहीं कर सकते। Our road, our track is to be set by the word of God. हमारा रास्ता जो है ये प्रभु का वचन तय करेगा। Jesus said, I am the way. प्रभु यीशु ने कहा कि रास्ता मैं हूँ। Without me, nobody can go to the correct destination, and correct destination for all of us is to go to heaven. कोई भी मेरे बिना जो है वो रास्ता नहीं पा सकता, कोई भी मेरे बिना स्वर्ग नहीं जा सकता। If all of us ask a question to ourselves, where are we going? Where do we want to go? Why are we in this world? अगर हम सभी अपने आप को ये सवाल करें कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, हमारा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है, हम कौन से रास्ते पे चल रहे हैं, ये सवाल करें अपने आप से। And where are we supposed to go? कि हम कहाँ चल रहे हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए। I know all of us, whether we are in the wrong track or the right track, all of us will reply, all the churches will reply, all the preachers will reply, all the believers in every churches will reply that I want to go to heaven. अगर ये तो सभी विश्वासी कह रहे हैं, सभी चर्च कह रहे हैं कि हम सही रास्ते पे हैं, सही रास्ते पर। अगर वो पूछे तो प्रभु जवाब देगा, लेकिन वो सभी जो हैं वो गलत रास्ते पर। I am sure not a single soul will reply that I want to go somewhere else other than heaven. देखिए, सभी जिससे भी पूछो, एक आदमी ये मना नहीं कर रहा, हर कोई कह रहा है कि मैं तो स्वर्ग जा रहा हूँ। Now, when we want to go to the heaven, there is only one way to heaven. देखिए, एक ही रास्ता है जो हमें प्रभु के घर में लेके जाएगा, एक ही रास्ता है। And that rasta, that way is Lord Jesus Christ. और वो रास्ता जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। And who is Jesus Christ? और प्रभु यीशु मसीह को We have to keep on repeating this question and answer again and again, otherwise we go on a wrong track. हमें लगातार ये सवाल अपने आप से पूछते रहना चाहिए और हमें प्रभु की तरफ से ये जवाब मिलता रहेगा, नहीं तो हम गलत रास्ते पे चलने लग जाएंगे। The moment we say Jesus Christ, we should understand who is Jesus Christ. जब हम समझ जाएंगे कि कौन यीशु मसीह है, ये समझ जाएंगे जिस पल को कि यीशु मसीह कौन है। Most of the time, right from our childhood, and whatever pictures we have seen, whatever statues we have seen, whatever we have heard about the story of Jesus Christ from our preachers and pastors and
elders and parents and families, we think, oh, Jesus Christ is a young man with shoulder length blonde hair or brown hair and with a white robe. He is called Jesus Christ. हम जब भी अपने बुजुर्गों से, अपने परिवार से या लोगों से सुनते आए हैं कि प्रभु यीशु कैसा था, कौन था, तो यही सुनते आए हैं कि उसके लंबे बाल थे, उसका कद लंबा था और ऐसा वेश था उसका, और ऐसा चलना था, ऐसा बैठना था। तो यही हम सुनते आ रहे हैं अपने लोगों से कि प्रभु के बारे में। And the moment we think about Jesus, that picture takes a place in our mind. और वैसी ही तस्वीर जो होती है वो हमारे दिमाग में बन जाती है प्रभु की। And we connect it. Oh, this young man was born in Bethlehem. From baby he became a Jesus of this size and this stature and this color and this dress up, and he was crucified on the cross. This Jesus was crucified for me. This is the picture we carry in our mind always. हम अपने दिमाग में हमेशा यही तस्वीर लेके चलते हैं कि बैतलहम में एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम यीशु रखा, वो वहां उसने शिफा दी, वो सलीब पे चढ़ाया गया। बस यही तस्वीर जो हम अपने दिमागों में लेके चलते हैं। As far as history is concerned, this is a true statement. और इतिहास भी देखें तो इतिहास भी यही बताता है कि ये जो भी है जो सही है स्टेटमेंट। We know this happened. Jesus was born. Jesus had his ministry. Jesus was baptized. Jesus was crucified. Jesus was resurrected. This is a true history. हम मानते हैं ये इतिहास सही है कि प्रभु जमीन के ऊपर आया बच्चे के रूप में, शिफा दी उसने और सलीब पर चढ़ाया गया। हम ये मानते हैं कि ये इतिहास जो बताता सत्य है। Although we don't know how Jesus Christ looked like. हम में से कोई भी नहीं हालांकि जानता कि प्रभु यीशु दिखने में कैसा था। By history we can imagine, because of his culture, because of his country, because of some pictures that people have drawn by the imagination, we have some pictures, some imagination in our mind. हमारे दिमाग में ये फिर काल्पनिक ये चीजें बन जाती हैं कि वो कैसा था, क्या करता था, कैसे चलता था। ये ऐसी ही सारी तस्वीरें जो है हमारे दिमाग में जो है वो बन जाती हैं। But a real child of God will go beyond this understanding to know who Jesus is. लेकिन जो सच्चा विश्वासी है, वो जो सच्चा ईमानदार है, वो पता करेगा, ढूंढेगा कि इन सच्चाइयों के इतिहास के पीछे असली बात क्या है, कि प्रभु यीशु कौन है। He is the word of God. वो परमेश्वर का वचन है। We must connect all the verses of the scriptures together to understand and to know who God is and who Jesus is. हमें सारे कलाम को इकट्ठा करके सारे कलाम को समझना चाहिए कि सारा कलाम जो क्या कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। We should never lose focus that Jesus is the word of God. Never lose this focus. हमें कभी भी ये निशाना छोड़ना नहीं चाहिए, अपना फोकस जो है वो हटाना नहीं चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। ये फोकस नहीं हटाना चाहिए। Jesus Christ on this earth in the flesh was God walking in the flesh, in the body of Jesus. प्रभु यीशु मसीह जो इस जमीन के ऊपर शरीर में था, वो पूरा परमेश्वर था, उसके अंदर परमेश्वर था, परमेश्वर देहधारी हुआ, उसके अंदर परमेश्वर काम कर रहा था। Then we have another question, that is, who is that Parmeshwar? Who is that God who was inside this man? अगला सवाल हमारे मन में ये आता है कि परमेश्वर कौन है, कौन परमेश्वर जो था, जो उसके अंदर था, वो कौन है। We must go back to the scripture. हमें वापस कलाम की तरफ जाना चाहिए। Who is God? परमेश्वर कौन है? Who is that thing that Jesus is calling his father? कौन है जो यीशु मसीह जिसको पिता कह रहा है? किसको कह रहा है वो मेरा पिता है? Jesus Christ, when he was born as a son, then he started talking somebody, calling as his father. जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ बच्चे के रूप में, तब जो है उसने पिता कहना शुरू किया। And who is that father he is talking to? और कौन है जो पिता उसका जिसके साथ वो बात कर रहा है, पिता कह के बात कर रहा है, वो पिता कौन है? Bible says God is the father of Jesus Christ. बाइबल कहती है परमेश्वर ही है जो प्रभु यीशु का पिता है। He is the begotten son of God. वो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। So God is his father. वो परमेश्वर उसका पिता है। So who is this father? पिता कौन है? फादर कौन है? पिता कौन है? God is the father. परमेश्वर पिता है। Now who is God? और परमेश्वर कौन है? John 4:24 says God is a spirit.
और यूहन्ना की 14 कह रही है कि प्रभु परमेश्वर जो है आत्मा है। So when Jesus is praying to Father, he is not praying to a old man with the white hair and white beard sitting in the heaven. ये नहीं है कि प्रभु प्रभु यीशु जब प्रार्थना कर रहा है पिता को, तो पिता जो कोई स्वर्ग में बैठा हुआ बुजुर्ग आदमी है जिसकी बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ी है उसको प्रार्थना कर रहा है, ऐसा नहीं है। Whenever Jesus Christ uses the word Father, that means he is talking to the Holy Spirit. जब भी प्रभु यीशु मसीह पिता कहता है तो उसका मतलब होता था कि आत्मा को पिता कह रहा है, आत्मा को पिता कह रहा है। Father and the Holy Spirit is one. और पिता जो आत्मा है और पवित्र आत्मा जो है ये दो नहीं, दोनों एक ही है। Because Jesus Christ is the Son of God क्योंकि यीशु मसीह जो था परमेश्वर का पुत्र था and God is the Holy Spirit. और परमेश्वर पवित्र आत्मा है। And when Gabriel angel came to Mary and gave the message, and he said, Holy Spirit will overshadow you. और अब देखिए जब परमेश्वर का फरिश्ता जिब्राइल मरियम के पास भेजा गया तो उसने फरिश्ते ने कहा मरियम पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर होगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर होगा और तू एक बच्चा जनेगी, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर So होगा। how did Mary became pregnant? How did she conceive this child? तो देखिए बहन मरियम जो थी वो कैसे गर्भवती हुई, बहन मरियम जो थी उसके पेट में बच्चा कैसे आया। She was conceived by the word of God. वो जो थी वो परमेश्वर के वचन से गर्भवती हुई। The angel was the messenger who brought the word of God and spoke the word to Mary. परमेश्वर का फरिश्ता जिब्राइल जो था वो परमेश्वर का कलाम लेके आया और उसने वही कलाम जो था मरियम को दिया। And what was that word? What Gabriel spoke? What was the word? और क्या वो शब्द था, कलाम था जो जिब्राइल फरिश्ता परमेश्वर से लेके आया, और क्या कौन सा वो कलाम था जो उसने बहन मरियम को दिया। What was the message? वो कलाम के अंदर संदेश क्या था जो उसने मरियम को दिया, क्या संदेश? You will have the power of the Holy Spirit will overshadow you. तो पवित्र आत्मा तुम पर छाया करेगी। फरिश्ते ने कहा मरियम पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर छाया करेगी। And what Mary did, she was a good believer. She received it by faith into her heart. और देखिए मरियम ने क्या किया, मरियम ने उस कलाम का, उस संदेश का विश्वास किया और अपने दिल से उस कलाम को आमीन किया और कबूल किया उसने। And what did she conceive in her womb? और उसने अपने पेट में क्या कंसीव किया, क्या उसके पेट में आया। We all know she conceived we conceived a baby that looked like a human baby. और हम जानते हैं उसके पेट में एक बच्चा पैदा हुआ जो बिल्कुल मनुष्य के बच्चे के रूप में पैदा हुआ है। But who was that baby? पर वो बच्चा कौन है अब? What was the seed which Mary received? और वो कौन सा बीज है जो मरियम ने कबूल किया, वो कौन सा बीज है? That seed was the message from God. वो सीड जो थी, जो बीज था, वो परमेश्वर का कलाम है, परमेश्वर का वचन है। वो जो in our human birth, in our physical birth, for all of us except Jesus, we received the seed. Our mother received the seed from our father. हम जितने भी इंसान हैं, हम जितने भी पैदा हुए हैं, हमारी जो माता थी, उन्होंने हमारे पिता से वो सीड बीज लिया है जिससे हम सभी पैदा हुए हैं। So a physical father was used for a physical woman to give a physical child. देखिए दुनियावी पिता ने दुनियावी माता को इस्तेमाल किया और उन दोनों के द्वारा दुनियावी बच्चे ही पैदा होते हैं। But God's children are not born like this. पर परमेश्वर जो है, वो परमेश्वर का बेटा, वो इस तरीके से पैदा नहीं होता। Because the offspring or the children of God must be born by the Holy Spirit. और जो भी परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले हैं, उनको चाहिए वो परमेश्वर के वचन पे इस्तेमाल करें, वो फिर माँ बाप से पैदा हुए नहीं है। Bible says we all have been born in this world, in the physical world. We physical human beings, we are born in sin. और
कलाम कहता है हम जितने भी माँ बाप से पैदा हुए हैं, हम सब के अंदर गुनाह है, पाप है हमारे अंदर। So if God has to produce his child and bring him into this world, that child must be born from God. और देखिए परमेश्वर ने अपना बच्चा जो पुत्र भेजा है, वो भी एक मरियम के द्वारा इस जमीन के ऊपर आया, वचन के द्वारा। Then only it will become the child of God. और देखिए वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया, परमेश्वर का पुत्र बना। That is how Jesus Christ is the only begotten Son of God. देखिए कैसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र बना, कैसे? A child is always begotten by his father. और बच्चा जो होता है वो हमेशा बाप का एकलौता पुत्र है, बेटा है। And the child is born of the mother. और जो बच्चा है वो अपनी माता के द्वारा पैदा होता है। No, the child is born from he is kept in the womb of his mother. She is the carrier of the child. और जो मदर है वो हस्बैंड से जो बीज लेती है, वो उसके पेट में जो है बच्चा उससे बनता है। She is the carrier of the seed to develop up to a baby level. वो जो बीज उसने लिया हुआ है उसको जो है आगे बढ़ाती है, जिसके द्वारा वो बच्चा तैयार होता है। She does not produce the seed. वो औरत जो है, बहन जो है, वो खुद से वो बीज पैदा नहीं कर सकती। She only preserves the seed into her womb until it develops like a full baby to be delivered. सिर्फ वो जो होती है वो बीज को अपने अंदर सुरक्षित रख सकती है, उस बीज को अपने अंदर रख के उस बीज को आगे बढ़ने वाला जो है माहौल दे सकती है। Before the baby is born, the baby is begotten of the seed. और जिससे पहले कि वो बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा जो बीज होता है वो परमेश्वर का इकलौता होता है, begotten होता है पैदा होने से। As human children, we were begotten by our human fathers. और जो हमारे दुनियावी बच्चे हैं वो अपने बाप के जो होते हैं वो begotten इकलौते पुत्र होते हैं। Then when we develop as a baby for 9 months in our mother's womb, we are born of our mother. और देखिए 9 महीने जो होता है वो बच्चे अपनी माँ की कोख में रहते हैं। There are 2 words here, dear brothers and sisters. We must remember 2 words. One is begotten and one is to be born. और हमें 2 शब्द जो है हमें याद रखने हैं भाई बहनों। एक होता है begotten इकलौता, और दूसरा जो होता है फर्स्ट बॉर्न। We are begotten by our father. हम जो है begotten जो है इकलौते जो हैं अपने पिता के द्वारा हैं। But we are born from our mother. और हम अपनी माँ के द्वारा पैदा हुए हैं। These two things are different. They are not same things. ये दोनों चीजें जो हैं एक ही नहीं है, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। If there was no seed and if nothing was begotten, the mother cannot give birth to any child. Mother cannot produce a child. अगर बीज ही नहीं है तो हम इकलौते बच्चे नहीं बन सकते। अगर बीज ही नहीं है तो माँ जो है वो बीज ले ही नहीं सकेगी और बच्चा पैदा नहीं कर So सकेगी। this is how we correctly understand how Jesus is the Son of God. और इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे जो था वो मरियम के द्वारा पैदा हुआ, परमेश्वर का इकलौता पुत्र। इससे हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु कैसे पैदा हुआ। How the Son became a son before he was a word. तो देखिए वो पैदा होने से पहले जो था, आने से पहले वो कैसे जो था वो पुत्र बन गया। The word of God is the seed. परमेश्वर का वचन जो है वो बीज है। Bible says the word of God is the seed. और बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन जो है वो एक बीज है। When we preach the word of God, we preach the seed. जब हम परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं, हम परमेश्वर का बीज प्रचार करते होते हैं। It is the original seed, no corruption there. ये जो है संपूर्ण पवित्र जो है, पवित्र बीज है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। And we know the life is the life of the fruit, the life of the tree, the life of the person, or life of anything is in the seed. और हम जानते हैं चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो फल फ्रूट हो, उन सब की जो जिंदगी जो आती है वो बीज से आती है। And when word of God is the original seed, और जब परमेश्वर का वचन ही असली बीज है,
So the eternal life, which is only found in God, is also found in the seed. और जो हमेशा की जिंदगी परमेश्वर में होती है, वही हमेशा की जिंदगी उसके बीच में होती है। There is only one type of eternal life, that is God Himself. सिर्फ एक ही हमेशा का जीवन है, वो खुद प्रभु परमेश्वर है। If we say we will have eternal life, what does it mean? अगर हम कहते हैं कि हमारे पास अनंत जीवन है, तो इसका क्या मतलब है? We should have received the same seed and born of the same seed which comes from God. तो हमारे पास भी वही बीज होना चाहिए और हम भी उसी बीज के द्वारा ही पैदा होने चाहिए। Then only that seed, the life in that seed will produce the same fruit. और इसी तरह वही बीज जो हमारी जिंदगियों में वही फल लाएगा। So going into eternal life means we will go and merge and join together into God, because only God is eternal life. क्योंकि वही बीज को पाना और फ्रूट लाना जो है, वो परमेश्वर के साथ इकट्ठा होना है, परमेश्वर के पास जाना है और परमेश्वर के साथ एक बनना है। Other than God, nobody can give us eternal life, and nobody has eternal life. और इसके अलावा हमारे पास कोई भी हमें हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकता, ना ही हमारे पास हमेशा की जिंदगी हो सकती This है। is the whole plan of God for sending us in this world. यही परमेश्वर का जो है प्लान है, योजना है, जो उसने हमारे लिए रखी है और हमें अपनी योजना दी है। Now question comes, why God had to do all this plan and all this exercise to do all this in this world? अब सवाल ये आता है कि ये सारा कुछ परमेश्वर ने क्यों किया, ये सारा प्लान परमेश्वर ने क्यों बनाया, ये सवाल आता है। How will God show that He is God? परमेश्वर किस तरह साबित करे कि वो परमेश्वर है? Because God is a spirit. क्योंकि परमेश्वर जो खुद है वो आत्मा है। Bible says nobody has ever seen God. बाइबल कहती है किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। But we say we have seen God. पर हम कहते हैं हमने परमेश्वर देखा। How do we know we have seen God? हम कैसे कह सकते हैं कि हमने परमेश्वर देखा है? Because God became man and He shown Himself to us like we look. He looked like that. क्योंकि परमेश्वर जो था वो खुद हमारी तरह इंसान बन गया। If God was shouting and thundering from the heaven in the cloud like it used to happen in the time of Moses on the mountain, who will know God? अगर परमेश्वर पुराने समय की तरह बादलों में, बिजलियों में आके हमें दिखाता, तो हम अभी कैसे मानते कि वो परमेश्वर है? How will God show to the mankind that He is love? परमेश्वर कैसे ये साबित करता कि मैं प्रेम हूँ और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ? ये कैसे साबित How will He show that I am the creator and I am your savior and I am your redeemer? परमेश्वर कैसे ये बताता कि मैं रचयिता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूँ? How will show us that we have fallen in sin and we need a redeemer to come back to God? कैसे हमें पता चलता कि हमने गुनाह किया है और हम पाप में चले गए हैं, और कैसे हमें पता चलता कि कौन हमें पापों से बाहर निकाल सकता है? He made the plan of salvation before He made the creation. उसने हमारे छुटकारे की योजना जो थी वो सृष्टि के रचने से पहले ही बना दी। Because He is God, He knows when He make a creation what will happen to this creation. इसीलिए परमेश्वर ने रचना से पहले ही ये योजना बना दी थी, उसे पता था। He knew the man is going to fall. वो जानता था कि मनुष्य जो है वो पाप गुनाह में जाएगा। God did not push the man into the fall. परमेश्वर ने मनुष्य को पीछे खींच के नहीं पाप में डाला, पीछे से धक्का लगा के नहीं गुनाह में डाला। He did not push them that, oh, go and do the sin. परमेश्वर ने नहीं कहा कि जाओ जाओ कि तुम गुनाह करो, पाप करो। परमेश्वर ने नहीं कहा ऐसे। If God made a plan that we should sin, then God has no authority to judge us. अगर परमेश्वर ने हमें पाप में धकेला है तो उसके हमें बचाने का उसके पास कोई अधिकार नहीं है। But God gave us a free will to choose between the sin and the righteousness. परमेश्वर ने हमें संपूर्ण फ्री मॉरल एजेंसी आजाद कर दिया है कि हम कौन सा रास्ता चुने, सही वाला या गलत वाला, आजाद किया चुनने के लिए। This is the good way of judging somebody. यही सबसे बेहतर तरीका है किसी को जांचने का। Who can be a better judge than God? परमेश्वर के अलावा कौन है जो बेहतर जांच कर सकता है? Even if when we go to give some exam,
मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, I give you an example that when we do the exam, और मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जब हम एग्जाम पेपर देने जाते हैं, then the paper tells us that some of the answers are correct and some of the answers are wrong. हमें जो होता है पेपर की क्वेश्चन शीट में दिखाया जाता है कि इनमें से कुछ सवाल गलत है और कुछ सही है, Which we called multiple choice these days. और हमें ये बताया जाता है कि ये मल्टीपल जो है हमारी चॉइस है कि हम किसको चुनते हैं, सही को या गलत को। The question paper does not say you must tick all the questions, all the answers you must tick. देखिए, जो क्वेश्चन पेपर होता है, प्रश्न पत्र होता है, उसने ये नहीं कहा होता कि आप सभी जगह पे टिक कर दें, सभी को ठीक कर दें, उसने कभी नहीं बोला होता। He says you have a choice, whatever you will tick, according to that, examiner will give you marks. वहां पे लिखा होता है कि आप जो भी टिक करेंगे उसके मुताबिक ही जो आपका एग्जामिनर है, जो आपको पास और फेल करने वाला है, उसके मुताबिक आपको वो देखेगा, पास या फेल करेगा। So we should have some understanding which one to tick and which one to avoid. और हमारे पास जो है ये समझ होनी चाहिए कि किसको हमने टिक करना है और किसको नहीं टिक करना है। Choice is ours. जो चॉइस है, जो मंशा है, वो हमारी अपनी है। Likewise, in the Garden of Eden, God gave the choice to the first couple that you can do this and you cannot do this. If you do this, yes, you can do this. If you want to do that, you can do that. Choice is yours, but be careful. There is life and death on one side. इसीलिए परमेश्वर ने जो पहला जोड़ा था इस जमीन के ऊपर, आदम हवा, दोनों को परमेश्वर ने बता दिया था कि ये फल नहीं खाना, अगर तुम ये फल खाओगे तो तुम ये सजा में चले जाओगे, अगर नहीं खाओगे तो आशीषों में जो भी तुम्हें आशीषें दी हैं, बढ़ो फलो फलवंत हो। तो परमेश्वर ने दोनों ही रास्ते रखे थे उनके पास। Bible tells us in the Garden of Eden there was a tree of life and there was a tree of knowledge of good and evil. परमेश्वर का वचन बताता है कि बाग अदन में जो था पेड़, वो एक ज्ञान का पेड़ था और एक तो भले और बुरे का पेड़ था। Now man was given, human being was given a choice. जो मनुष्य को जो दी थी परमेश्वर ने, वो चॉइस दी थी कि वो चुन सकता था। But the man chose man chose the wrong things. पर मनुष्य ने जो चुनी वो गलत चीज चुनी। Man used his own choice because God gave him the choice. उसने ही चुनी है, परमेश्वर ने तो उसे चॉइस दी थी, लेकिन उस मनुष्य ने खुद चुनी वो चॉइस गलत। Now when God will make a judgment, then God will do the judgment according to the deed, according to the act that the man has done. जब परमेश्वर न्याय करेगा, वो इस हिसाब से न्याय करेगा कि जो हम मनुष्यों ने फैसले लिए हैं, जो काम किया है, उसके द्वारा ही हमारा परमेश्वर न्याय करेगा। Now if God was not a loving God, only a judging God, अगर परमेश्वर अगर प्रेम करने वाला ना परमेश्वर होता, सिर्फ ये न्याय करने वाला, जांचने वाला ही परमेश्वर होता, then none of us will be saved. तो हम में से कोई भी जो था वो बचाया नहीं जाना था। Because the first attribute of God is that God is love. सबसे पहले जो परमेश्वर अपना स्वभाव सबसे ऊपर जो रखता है, वो रखता है प्रेम। परमेश्वर प्रेम है। Even today he has given us the substance of all the 10 commandments into 2 commandments, and the first commandment is love your God with all your might and all your heart. इसी तरह परमेश्वर ने हमें जो भी 10 हुक्म दिए हैं, उनमें से सबसे पहला जो हुक्म परमेश्वर ने रखा है कि तू अपने परमेश्वर को प्रेम रख और उसके अलावा किसी भी और की उपासना ना कर। Love your God and then love your neighbor. परमेश्वर कहता है कि अपने परमेश्वर से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से प्रेम रख। Who is the neighbor? Not everybody is my neighbor. Bible tells who is my neighbor. ये नहीं है हमारा पड़ोसी कौन है, हर कोई हमारा पड़ोसी नहीं है। बाइबल बताती है कि हमारा पड़ोसी कौन है। My neighbor is not the person who is living next door to my house. मेरा पड़ोसी वो नहीं है कि जो मेरे घर के साथ रहता है, वो मेरा पड़ोसी है। No. Bible, there may be devil living next to my house, so I will not be loving the devil because God says you love your neighbor. ये थोड़ी कि हमारे पड़ोस में शैतान रहता है और हम
से प्रेम करते रहें, हमारे पड़ोस में शैतान भी रह सकता है। God, Bible explains us the divine things, the spiritual things in a divine way. परमेश्वर जो है अपने गहरे भेद जो है उनको प्रकाश के द्वारा गहराई को हमारे ऊपर दर्शाता है। So what we have been talking so far is तो हम किस जो बात कर रहे हैं, we have been trying to know that when we want to go to heaven, we must take the right path, the right road. हम जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं, स्वर्ग जाना है तो हमारे पास सही रास्ता होना चाहिए, And the right way is Lord Jesus Christ. और सही रास्ता प्रभु यीशु मसीह है। There is no other way except Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। And when God knew that man is going to fall and God is love, so why did God, what was the purpose of God making a plan of salvation for man, for you and me? जब मनुष्य ने गुनाह किया, पाप किया, तो परमेश्वर ने प्लान क्या बनाया कि हमें प्यार दिखा के उन्हें छुटकारा दे। This is to express his attribute, his quality, that he is a creator, he is a judge, and he is love, and he is savior. All these qualities, the Holy Spirit has these qualities. How will he show him? How he will show these qualities to us? देखिए, परमेश्वर प्रेम है, न्याय करने वाला है, सर्वशक्तिमान है, प्रेम करने वाला, लेकिन ये सारी जो उसके अंदर गुण है, वो ये गुणों को कैसे बताए हमें? We are human beings. हम जो है, हम इंसान है। We are controlled by the five senses. हम जो है 5 तत्व के द्वारा जो कंट्रोल किए जाते हैं। So God had to become like us to talk to us. जो परमेश्वर जो था हमारी तरह ही बन गया और हमारी ही तरह वो बैठा उठा चला फिरा। That is the mystery of Jesus Christ. यही परमेश्वर का भेद है जो हमारे ऊपर खोला गया। That is the mystery we believers understand, that God became man for us. यही हम भेद समझ गए कि परमेश्वर जो था वो क्यों मनुष्य बन गया, वो आदम बन गया। God left heaven, God left his heavenly status to come to the ground to become low as us. वो परमेश्वर था, देखिए वो स्वर्ग छोड़ के वो जमीन के ऊपर आ गया और आम इंसान बन गया इस जमीन के ऊपर। So that through this process he can bring us human being back to heaven. और ताकि हम जो लोग हैं इस प्लान योजना के द्वारा हम वापस आ जाएं और हम जो है उद्धार पाके स्वर्ग में चले जाएं। This whole process from Genesis to Revelation is the journey. ये जो उत्पत्ति है और प्रकाशित वाक्य, ये सारा सफर है हमारा। In this journey, different people are born in different times and ages and centuries. और इस सफर में अलग अलग सालों में, अलग अलग सदियों में, अलग अलग जो है मनुष्य पैदा हुए हैं हम। But there is only one God behind the whole plan. और इस सभी देख लो सदियों के पीछे जो था वो एक ही परमेश्वर था। And there is only one Jesus Christ who accomplished the whole plan. वो ये सभी इस योजना के पीछे एक ही परमेश्वर जो था वो प्रभु यीशु मसीह था जो ये सारी योजना के पीछे था। And that God whom we call God and call Father today is the Holy Spirit, which is one Holy Spirit. और हम जो उसे पिता परमेश्वर पुत्र कहते हैं वो पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर जो ये कहलाता है। That same Holy Spirit, when it is in heaven, और जो वही पवित्र आत्मा जो जब स्वर्ग में है, he is addressed as Father. वो उस पिता को जो है अप्रोच करता है, उस पिता के पास हमारी दुआ प्रार्थना लेके जाता The है। whole same Holy Spirit, when he was in Jesus Christ's body, is called the Son. वही पवित्र आत्मा जो था वो प्रभु यीशु मसीह के अंदर था, जब वो पिता कहता था उसे पुत्र कहता था, वो उसी के अंदर था। And the same Holy Spirit which is in the whole universe and also in you and me today is the Holy Spirit, the same Holy Spirit. यही पवित्र आत्मा है जो अब सारे संसार में, सारी सृष्टि में घूमता है, आपके द्वारा मेरे द्वारा काम करता है, हमारे साथ काम करता है, वही पवित्र आत्मा। This is how we clearly know how many people are there in God. There is only one God. There is only one God, that is Spirit. ऐसी तरह ही हम सभी लोग कैसे जान लेते हैं कि एक परमेश्वर है और एक ही परमेश्वर है सारी कायनात। Many people make the argument when Jesus is praying many times and he's saying, Father, 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 when he's talking to Father, he's crying, laughing, talking to Father and praying and talking about Father to the people. Who is that Father he's talking about?
बहुत सारे लोग इस विषय पर बहस करते हैं कि देखिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता है, पिता के आगे प्रार्थना करता है, उससे बात करता है, वो देखिए पिता के आगे बात कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। बहुत सारे लोग इस विषय पे बहस करते हैं। Who is the Father he is talking to? वो कौन पिता है जिसके जिसके आगे वो बात कर रहा है, प्रार्थना कर रहा So है? that पिता is कौन why है? it is very important we have to remember all the scriptures which are connecting us with God. All scriptures, not only one scripture. इसीलिए हमें जो है सभी आयतों को, कलाम को देखना है, सिर्फ एक कलाम को नहीं देखना। So the answer we get is when Jesus Christ is anytime talking as Father, he is talking about the Holy Spirit. Holy Spirit is the Father. और हमें जानना चाहिए जब भी प्रभु यीशु मसीह पिता के आगे प्रार्थना कर रहा है तो पिता पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा। If he was not the Holy Spirit, then he cannot be everywhere. अगर वो पवित्र आत्मा नहीं है तो वो कैसे हर जगह हो सकता है? If Father, Son, and the Holy Spirit were three persons or personalities, how they can be everywhere? अगर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों अलग है, ये तीनों हर जगह कैसे हो सकते हैं? And Jesus told his disciples when they used to ask questions, and the Pharisees when they asked questions about Father and him, और जब देखिए फारिसियों ने भी उसको सवाल किया पिता के ऊपर, पिता के बारे में फरीसियों ने उसको सवाल किया। we read in John chapter 13 and 14, especially 14, उसने यूहन्ना 13 और 14 जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना की अंजील और 13 और 14, he tells the disciples asked him, show us the Father. देखिए चेलों ने कहा कि हमें पिता दिखा। And this was a very silly question for Jesus. ये प्रभु यीशु मसीह के लिए बड़ा बचकाना सवाल था। Because he says, I have been with you people for so long and you still ask me, show us the Father. प्रभु ने कहा मैं इतने सालों से, इतने समय से तुम्हारे साथ हूँ और तुम कहते हो कि हमें पिता दिखा। And he says, if you have seen me, you have seen the Father. जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। I and my Father are one. मैं और मेरा पिता एक हैं। I am in my Father and my Father is in me. मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। Now if we use a common sense, देखिए हम अपने दिमाग को अगर इस्तेमाल करें, if Father and Son are two different persons, अगर पिता और पुत्र दोनों अलग अलग शख्सियतें हैं, if God of heaven is one person and Jesus Christ, Son of God, is another person, अगर पिता जो स्वर्ग में बैठा हुआ अलग शख्सियत है और पुत्र जो है वो अलग शख्सियत है। now I am talking, the brother is translating, we are two persons. जब मैं भाई को कहता हूँ कि कलाम को जो ट्रांसलेट करो, ये भाई जसविंदर जो है भाई, ये दूसरा भाई है। So we are two persons, we are two personalities, so we are two persons. हम दोनों दो अलग शख्सियतें हैं, हम दोनों अलग अलग मनुष्य हैं। And if I say, I am in brother Jaswinder and brother Jaswinder and me, then people will laugh. They will say this man is crazy. अगर मैं कहूँ मैं भाई जसविंदर में हूँ, भाई जसविंदर मुझ में है, तो ये एक मजाक का विषय है, ये तो बड़े हंसने वाली बात हो जाएगी। But God is not mocked. परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं He जाता। is holy and sanctified and righteous God. वो पवित्र है और वो जो छुटकारा देने वाला पाक और पवित्र परमेश्वर है। Jesus is not making a funny statement to his disciples. प्रभु यीशु मसीह ने कोई मजाकिया उदाहरण नहीं दी थी अपने चेलों को, कोई ठट्ठे मजाक वाला वचन नहीं दिया अपने चेलों को। Sometimes we make some statements to the people and after that we say, oh, I was just joking. कई बार होता है कि हम लोगों को कलाम सुनाते हैं और लोग जो है बाद में कहते हो मैं तो मजाक कर रहा था। No, God is not mocked. परमेश्वर ठट्ठों मजाकों में नहीं उड़ाया जाता। He is holy, eternal and sovereign God. वो पवित्र है, अनंत काल का परमेश्वर है, हमेशा युगों युग रहने वाला परमेश्वर है। Nobody dare talk any funny thing to God. किसी में ये जरूरत नहीं है कि परमेश्वर के साथ ठट्ठे मजाक कर ले, किसी की हिम्मत नहीं We है। must have the fear of God and trembling and fearing and respecting and loving, we must worship our God.
हमें अपने परमेश्वर की उपासना डरते हुए, कांपते हुए और इज्जत के साथ हमें परमेश्वर की उपासना So करनी when चाहिए। Jesus said that I and my Father are one and I am in Father and Father in me, that means they are one person, not two persons. जब प्रभु ने कहा कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, हम दोनों एक हैं, तो इसका मतलब वो दो नहीं है, वो एक है। That means the theory of Father and Son and the Holy Ghost, three different persons, is absolutely a useless and wrong theory. It is never found in the Bible. जो पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की तीन दीदी तालीम है, वो पूरी तरह बाइबल के मुताबिक गलत है, वो बाइबल के मुताबिक नहीं है। The word Father, the word Son, and word Holy Spirit is definitely found many times in the Bible. और बाइबल में पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो है, ये शब्द कई बार बाइबल में आया है। But we must understand, we have to connect together why it is used as Father, why used as Son, why used as Holy Ghost. पर हमें ये समझना चाहिए कि बाइबल के अंदर जो पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, वो क्यों आया है जिक्र उसका। For that, we have to sweep the Bible from Genesis to Revelation. हम उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक जब बाइबल पढ़ें और देखें, सारी बाइबल देखें, Only one book of Paul, one book of Peter, one gospel of Matthew, only that much is not the word of God. अगर हम अकेला पौलुस की पत्री पढ़ते हैं, पतरस की पढ़ते हैं या योना की अकेली पत्री पढ़ते हैं, तो ये काफी नहीं है। Whatever God has written and given us in the Bible from Genesis to Revelation, everything is word of God. उत्पत्ति से लेके और प्रकाशित वाक्य तक जो भी लिखा है, वो परमेश्वर यहोवा यूं कहता वाला वचन है। Bible says in Matthew chapter 4 and verse 4, बाइबल कहती है मत्ती 4 चैप्टर और उसकी 4 आयत, Man shall not live by bread alone, but by every word which comes from the mouth of God. Every word. परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य जो है अकेला रोटी से जीवित नहीं रहेगा, बल्कि हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलेगा। So when we go to the Bible, we must ponder, we must meditate, we must focus on every word of God. जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, तो हमारा ध्यान जो है, हमारी जो फोकस है, जो हमारा निशाना है, वो परमेश्वर का वचन होना चाहिए। So every word of God is the word of God, and word of God is God. और हर एक वचन जो है, वो परमेश्वर का वचन है और वचन ही परमेश्वर है। And the Bible we have, the whole Bible, this is the word of God and this is God. और पूरी बाइबल ही जो है परमेश्वर का वचन है और बाइबल ही परमेश्वर है। When we read the word of God and understand it by the power of the Holy Spirit, guidance of the Holy Spirit, then God is talking to us. जब हम पवित्र वचन पढ़ते हैं, तो पवित्र वचन के द्वारा जो है हम विश्वास करते जानते हैं कि परमेश्वर से हम बात कर रहे हैं। This is how God talks to us. यही तरीका है जो परमेश्वर हमारे साथ बात करता है। No one can ever say that today God has talked to me in some way or some way without involving the word of God. कोई मनुष्य ये नहीं कह सकता कि मेरे से परमेश्वर ने ऐसे बात की, मेरे से परमेश्वर ने वैसे बात की, जब तक परमेश्वर का वचन बीच में ना हो। Whatever God talks to anybody, that will bring him back into the word of God. और देखिए, जो परमेश्वर का वचन ही है जो हमें वापस जो है परमेश्वर में लेके आता है। If somebody says God talks to me अगर कोई कहे कि परमेश्वर ने मुझसे बात की है and does not agree with the word of God, that person is a liar. अगर वो कहे मुझे परमेश्वर ने मेरे साथ बात की है, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के साथ सहमत ना हो, तो वो झूठा है। How God can be in disagreement with his own word? परमेश्वर जो है वो अपने वचन के खिलाफ कैसे हो सकता है? God respects his own word. परमेश्वर अपने कलाम की इज्जत करता है। God is found in his own word. परमेश्वर अपने वचन में पाया जाता है। That is why if I say, oh, I got a dream, I got a vision, or I got a prophecy, or I got an idea that God spoke to me, or God sent an angel to speak to me, and when
that message, whatever God spoke to me, if it is from God, it will bring me back into the Word of God. अगर कोई कहे कि मुझे सपना आया, मुझे विजन आया, परमेश्वर ने मुझसे बात की है, लेकिन अगर वो वचन के साथ फिट नहीं हो रहा है, वो गलत है। God, परमेश्वर का वचन, God is not author of confusion. बाइबल का परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। He is the God of peace and harmony. वो एक शांति का और हर चीज को ठीक रखने वाला परमेश्वर है। How he was dealing in Genesis, the same way he will deal in Revelation. किस तरह उसने उत्पत्ति को लेकर और प्रकाशित वाक्य तक जो है उसने डील किया है। Hebrew 13:8 says, Jesus Christ is an unchanging Word of God, and He is yesterday, today, and forever. Jesus Christ is the same. इब्रानियां 13:8 कहती है कि प्रभु यीशु मसीह युगों युगों एक सा है, वो आज का, कल का और आने वाले समय का एक जैसा परमेश्वर है। Then again a question come, who is Jesus Christ? फिर सवाल आ जाता है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? Jesus Christ is the Word of God. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। And Jesus Christ is the Word of God, and Word of God is God. यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। So the answer is that God is an unchanging God, yesterday, today, and forever. He is unchanging God. तो उसका अर्थ यही निकला कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर ही है, जो युगों युगों एक सा है, आज का, कल का, आने वाला एक जैसा परमेश्वर। So if God is sending a message to me or to anybody in any country, and if that message is from God, आज परमेश्वर अगर हमें और दुनिया में किसी को भी अपना कलाम संदेश भेज रहा है, तो वो आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए है संदेश। where will that message bring me to? कहाँ से वो मैसेज आएगा हमारे लिए? And where will it take me to? और कहाँ से हम लेंगे वो संदेश? Where will it lead me to? वो किधर को हमें रास्ता दिखाएगा, किधर को लेके जाएगा? It will lead me into the Bible. वो हमें परमेश्वर की बाइबल की तरफ लेके जाएगा। People who don't pray and don't read the Word of God and don't wait for the revelation from God, they will always live in confusion in this world, whether they read the Bible for 1 century. जब तक लोग प्रार्थना नहीं करते, जब तक लोग प्रभु का वचन नहीं पढ़ते, तब तक जो वो लोग हैं वो सही रास्ता नहीं पा पाएंगे, वो हमेशा गड़बड़ी में ही रहेंगे। Bible says faith comes by hearing, and hearing comes from the hearing of the Word of God. बाइबल कहती है कि विश्वास सुनने के द्वारा और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। And where is that Word of God? और परमेश्वर का वचन कहाँ है? Word of God is given to us in the form of 66 books today. परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर जो है वो हमें कलाम के द्वारा दिया गया और 66 किताबों के द्वारा हमें God दिया is गया है। talking to us from this Word. परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करता है। But when we read this Word, we don't understand it always. पर हम वचन पढ़ते हैं तो कई बार हम इसे समझ नहीं पाते, Because we cannot learn the Bible. क्योंकि हम परमेश्वर का वचन सीखते नहीं हैं। We cannot go to a college to learn the Bible. हम कॉलेज में नहीं जाते परमेश्वर का वचन सीखने। We cannot go to a church building to learn the Bible. हम किसी बिल्डिंग में नहीं जाते परमेश्वर का वचन सीखने। We have to believe the Bible. हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं। When we believe the Bible with a good heart, then the Holy Spirit will explain the Bible to us. जब हम एक अच्छे हृदय से परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, अच्छे हृदय से परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है समझाने के लिए। हालेलुया। When we read the Bible, we read sometimes the Bible only for knowledge. कई बार हम बाइबल को सिर्फ ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं। Dear brethren, the knowledge will not take us to heaven. देखिए, ज्ञान हमें स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। I can be a gold medalist. I can have the doctorate degree in theology. I can be the best preacher and teacher in this world. That will not take me to heaven. मैं एक
गोल्ड अवार्ड ले सकता हूँ, मैं एक अच्छा अफसर बन सकता हूँ, अच्छा डॉक्टर बन सकता हूँ, अच्छी डिग्री ले सकता हूँ। I can quote the whole Bible verses on my tongue. मैं सारी बाइबल की आयतें जो हैं वो जुबानी याद कर सकता हूँ। Like so many people today bring the quotations of Brother Branham and say, Brother Branham said, Brother Branham said, Brother Branham said. जिससे आज कई लोग जो हैं भाई ब्रानम की जो है वो कोटेशन ले लेते हैं और सारा दिन ये कहते हैं भाई ब्रानम ने ये कहा, भाई ब्रानम ने वो कहा, भाई ब्रानम ने ये कहा। But they don't bring those quotations back into the Bible. और जब उन कोटेशनों को वापस वचन में लाके देखें, बाइबल में लाके देखें, Whatever a pastor says, whatever a preacher says, whatever a prophet or man of God says, it must be found in the Word of God. कोई भी सेवक, कोई भी प्रचारक जो भी प्रचार करता है वो बाइबल में मेल खाना चाहिए। If that does not tally with the Word of God, that pastor, the preacher, teacher, prophet is a liar. He's a false prophet. कुछ भी संदेश जो बाइबल से मैच नहीं खाता, वो सेवक, वो पास्टर जो है वो गलत है, झूठा है, अगर वचन से मेल नहीं खाता। God is not respecter of persons. परमेश्वर जो है वो शख्सियत की, इंसानों की इज्जत नहीं करता। God is respecter of His own word. परमेश्वर अपने कलाम की इज्जत करता है। God will respect us if we respect His word. परमेश्वर हमारी इज्जत तब करेगा अगर हम परमेश्वर के वचन की इज्जत करेंगे। God will glorify us if we glorify Him through His word. परमेश्वर हमें भी तब महिमा देगा जब हम उसके कलाम को महिमा देंगे। God was glorified in Jesus Christ. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा महिमा लेके आया। Who is Jesus Christ? प्रभु यीशु मसीह कौन है? Jesus Christ is the word of God. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। So God was glorified through His own word. परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा ही महिमा लेके आया। See, brothers and sisters, we cannot lose track of the things of the Bible, the scriptures of the Bible. देखिए भाई और बहनों, हम अपना जो निशाना है वो गुम ना कर लें, अपना निशाना जो है गलत ना कर लें। God has brought us into this world only for one purpose. परमेश्वर ने हमें इस जमीन के ऊपर सिर्फ एक ही मकसद के लिए भेजा है, एक ही मकसद के। Besides our physical life, besides our parents, relatives, children, family, job, and tourism and all these things, God has got a more important purpose. हमें परिवार वाली जिंदगी, अपने घूमने फिरने वाली जिंदगी, दुनियावी जिंदगी को एक तरफ रखते हुए हमें परमेश्वर की जो है उपासना करनी है, उसको पहले रखना है। This life of 30, 40, 50, 60, 100 years will finish here. एक दिन ये जिंदगी जो है 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल बाद खत्म हो जानी है। Our purpose of being in this world is not to live 100 years. हमें परमेश्वर ने इस जगत में 100 साल जीने के लिए नहीं भेजा। It is better to live when we are 25 years old and go to the source for which God has sent us. अच्छी बात है कि हम 25 साल ही हमारी चाहे उम्र हो, 25 साल में चले जाएं, लेकिन हम परमेश्वर का मकसद पूरा करके जाएं। Instead of lingering for 100 years, living and thinking we are achieving a great victory by living 100 years. 100 साल जीने के ज्यादा अच्छा है 100 साल जी के बड़ा बनना है, ये करना है, वो करना है, उससे अच्छा है कि कम उम्र में हम परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का कार्य करके जाएं। We never came into this world by our own choice. हम इस जगत में अपनी मर्जी के द्वारा नहीं आए थे। We were never born in a city or a town or a family by our own choice. हमने अपनी मर्जी से किस शहर में जन्म लेना है, किस घराने में जन्म लेना है, किस देश में जन्म लेना है, ये हमने नहीं फैसला किया। We will not leave this world by our own choice. हम इस जगत में भी जो है अपनी इच्छा से नहीं रह रहे। And God knows what is the time of our coming and what is the time of our going. सिर्फ परमेश्वर जानता है कि हमारा इस जगत से जाने का कौन सा दिन है, ये मुकर्रर जो परमेश्वर ने किया हुआ है। So point A to point B, from coming to going, is known to God. सिर्फ हमारा जगत में आना और जगत से जाना जो है, ये समय परमेश्वर के पास है। So what is the purpose? Why are we here? तो मकसद क्या है, क्यों परमेश्वर ने भेजा हमें इस जमीन के ऊपर? From point A to point B, what is the purpose of God?
शुरुआत से लेके आखिर तक जो हमारा जीवन है जमीन के ऊपर ए से बी लेकर, वो क्या मकसद है We हमारा? have seen from the beginning of this world that we were disconnected with God because of sin. देखिए, हम उत्पत्ति से देखें कि हम परमेश्वर से दूर क्यों हुए, पाप के कारण। We were पाप है, disconnected because of the sin. हम पाप के कारण जो है परमेश्वर से टूट गए, दूर हो गए हम And पाप के God कारण। knew it before the creation that we will be disconnected. और परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से पहले ही जानता था कि हम जो हैं जो गुनाह से परमेश्वर से दूर हो So जाएंगे। God made the plan of salvation before we were born in this world. तो परमेश्वर ने ये योजना बनाई कि वो इस जगत में आया और हमें दोबारा से परमेश्वर ने हमारे अपने साथ जोड़ा। And He can bring him back, He can get us back into the relationship with Him only by one way. और जो हमारा रिश्ता टूट गया था परमेश्वर से, परमेश्वर ने दोबारा हमारा रिश्ता अपने साथ जोड़ा, लेकिन एक ही जरिया, एक ही तरीके से। There was only one way, एक ही रास्ता था, and एक ही that तरीका। way is Jesus Christ. वो रास्ता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। And Jesus said, I am the truth, I am the way, and I am the life. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, सत्य भी मैं ही हूँ, जीवन भी मैं ही हूँ। He said, I am that bread which came from heaven. और कहता, मैं ही जीवन की रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरी है। We need the bread to live. हमें उस रोटी की जरूरत है जीने के लिए। The bread we eat every day, still we die. हर जो रोटी दुनियावी खाते हैं, हम रोज खाते हैं, लेकिन मर जाते हैं। Maybe we can sustain for 100 years, हो सकता है कि हम वो खा के 100 साल जी लें, but we will die. लेकिन एक दिन मर जाएंगे। But unless we eat the bread which came from heaven, अगर जो रोटी स्वर्ग से उतरी है, we will not die then, हम कभी नहीं मरेंगे, because that bread is eternal life. क्योंकि वो रोटी जो है अनंत जीवन है हमारा। Out of the loving attribute of God, when God knew we are falling in sin, He wanted to bring us back to Himself. जब हमने पाप किया तो परमेश्वर किस तरह हमें वापस जो है वो अनुग्रह में, उद्धार में लेके That आया। is why it is important for us to live our life rightfully according to the pattern that shown to us in the Word of God. इसीलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि जो तरीका परमेश्वर ने, सही रास्ता परमेश्वर ने हमें दिखाया है, उस पे हमें चलना है। Jesus said, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. प्रभु ने कहा कि जब तक मनुष्य दोबारा जन्म ना ले, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। So what is the destination? What Jesus is interested in telling us? तो परमेश्वर ये इसके ऊपर क्यों बात कर रहा है? क्या है जो आखिरी हमारा डेस्टिनेशन है जहाँ He हमें is पहुंचना है? telling us again and again that, listen, you don't belong to this world. वो क्यों बार बार हमें कहता है कि तुम इस संसार के नहीं हो, तुम इस संसार के नहीं हो। Your destination is eternal life. तुम्हारा जो मंजिल है वो हमेशा का जीवन है, हमेशा का Only जीवन है। those whom He knew before the creation, only they will go to eternal life. जो जगत की उत्पत्ति से पहले चुने हुए हैं, सिर्फ वो ही जाएंगे। God has not made us a robot that He made 0.02% population of the world to go to heaven and rest everybody go to hell. God did not work like this. परमेश्वर ने हमें कोई रोबोट नहीं बनाया कि सारा कुछ जो है प्री इंस्टॉल कर दिया हुआ हमारे अंदर की हम उठते बैठते हैं, तो सारा एक पीछे से डाटा है और हम 2% जो है स्वर्ग जाएंगे, बाकी नहीं। ऐसा No, नहीं no, है। no. God, because He is God, He has knowledge of everything before the thing come into existence. God knows who will obey and who will not obey. इससे पहले कोई चीज होंद में आए, इससे पहले कोई चीज आए, परमेश्वर पहले से ही उसकी मौजूदगी जानता है, और परमेश्वर अपने पूर्व ज्ञान के द्वारा ये जानता है कि कौन छुड़ाया जाएगा, बचाया जाना है, और कौन सा जो है जो बर्बाद होना है, रह जाना है इस जमीन के ऊपर। So predestination happened because of the foreknowledge of God. इसलिए जो जगत की उत्पत्ति से पहले चुने हुए हैं, वो पहले से ही परमेश्वर के पूर्व ज्ञान में थे। And because God knew them before they came in this world, so God put their names in the Lamb's book of life.
इसीलिए जिनको जगत की उत्पत्ति से पहले चुना हुआ था उनके नाम परमेश्वर ने मेमने की किताब में लिखे हैं। and only they will go to eternal life. फिर वो ही जिनके नाम मेमने की किताब में लिखे हैं वो ही जो है हमेशा की जिंदगी स्वर्ग में उधार पाएंगे। Whom God has known before the foundation of the world, their destiny cannot change because those people God knew this man will never change. जिनको परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुना हुआ है और उनकी मंजिल जो है स्वर्ग जाना है, कोई भी उनकी मंजिल बदल नहीं सकता। But those who have been on the wrong track, and God knows that one day He will correct His track, He will correct His path, He will correct His way. God has put His name in the Lamb's Book of Life. और जो अभी गलत रास्ते पे चल रहे हैं, जो गलतियों में चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उनको पहले से जानता है वो कब ठीक हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, सही हो जाएंगे परमेश्वर के साथ। अगर उनके नाम मेमने की किताब में लिखे हुए हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। God knows who will correct, who will not correct. परमेश्वर पहले से ही जानता है कि कौन जो है ठीक हो जाएंगे और कौन लोग हैं जो ठीक नहीं होंगे। It is like we took with an example in the beginning when we started talking this evening. ये देखिए, अगर हम शुरुआत से देखें जैसे हमने शुरुआत में ये जाना था, If I was going on a wrong way, if I was walking or driving on a wrong road, I will go to the wrong destination. अगर मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ तो मैं गलत मंजिल पे पहुंच जाऊंगा। Now, if somebody tells me, a man of God comes and tells me, listen, mister, you are on a wrong road. You are not going to go where you want to go if you continue like this. अगर कोई भाई आकर हमें समझाए कि आप गलत रास्ते पे हैं, ये रास्ता गलत है जहां आप जा रहे हैं, And if I say, okay, brother, thank you very much, thank you, God bless you, but I still continue on the same road, अगर हम कहें भाई तेरा धन्यवाद जो आपने हमें ये बचा लिया और गाइड कर दिया कि ये रास्ता गलत है, लेकिन धन्यवाद करने के बाद हम फिर उसी रास्ते पे चले जाएं, फिर so do you think when I thank that brother and when I thank God, do you think I'm going to heaven? No. आप क्या कहते हैं कि अगर हमने उस भाई को धन्यवाद किया है और अगर हमने परमेश्वर को धन्यवाद कर दिया है और फिर हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे? नहीं। And then I will say, oh Jesus, I'm very thankful, but I'm still following the same road, still following the same, I don't want to change my track. अगर हम कहें प्रभु तेरा धन्यवाद जो तूने मुझे बता दिया कि मैं गलत रास्ते पर हूँ लेकिन मैं चलूंगा इसी रास्ते पर, तो क्या प्रभु परमेश्वर हमें बचाएगा? God will laugh at such a person. He will say, blind man, you don't even know that you are blind. परमेश्वर हंसेगा उस भाई पर, बहन व्यक्ति पर कि तुम हे भाई मूर्ख हो कि तुम्हें बताने के बाद भी तुम गलत रास्ते That पर चल रहे man हो। cannot go to heaven, cannot go to the correct destination unless he changes the road. और वो इंसान भाई उस वक्त व्यक्ति उस तक स्वर्ग में नहीं जा सकता जब तक वो उस रास्ते को बदल नहीं लेता। Unless he corrects his way, he will not reach the destination. अगर जब तक वो अपने रास्ते को ठीक नहीं कर लेता वो सही मंजिल पे नहीं पहुंच This पाएगा। is why Jesus said, your destination is going to hell because of the sin. If you want to be corrected, then you must be born again. इसीलिए प्रभु ने भी कहा कि तुम नरक में जाओगे अगर तुम तौबा नहीं करोगे, अपने गुनाहों को पापों को नहीं मानोगे, तो तुम सब के सब मरोगे, बर्बाद होगे। You will all die in your sin. तुम सभी अपने पापों में मरोगे। Because from the beginning, the road you have chosen since your birth, it is leading to hell. तुमने जो शुरुआत में ही उत्पत्ति से शुरुआत में ही गलत रास्ता चुना हुआ है वो नरक में बर्बादी की तरफ And जाता your है। good works cannot lead you. Suppose I do good works on a wrong road, do you think I will reach the right destination? आप क्या समझते हैं, मैं अगर अच्छे कर्म करता हूँ लेकिन गलत रास्ते पे जा रहा हूँ तो मैं बचाया जाऊंगा? No. नहीं। Unless I am born by the Holy Spirit, जब तक मैं पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म नहीं पा लेता, then Holy Spirit will guide me to the true path. और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई नहीं करता Then Holy Spirit will guide me into the Word of God. पवित्र आत्मा हमें सिर्फ पवित्र वचन की तरफ लेके जाएगा। Then Word of God is Jesus Christ. और परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह है। And once I am in Jesus Christ, He said, I am the way. और देखिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि रास्ता मैं हूँ। So when I am in Jesus Christ, I am in the Word of God, so I am in the way. जब मैं प्रभु यीशु मसीह में हूँ तो मैं परमेश्वर में हूँ, तो मैं सही रास्ते पे हूँ। That is how I will go to heaven.
इस तरह मैं प्रभु के राज्य में स्वर्ग में जाऊंगा। Paul says in letter to Corinthians, संत पौलुस जो है वो करंथियों को पत्री लिखता है, I have a target in front of me. पर मेरे सामने परमेश्वर का दिया हुआ एक टारगेट है, एक निशाना है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। Although I am running on the track, मैं उस रास्ते पे दौड़ा चला जा रहा हूँ, although I am running on a racing track, मैं उस दौड़ वाले रास्ते पे दौड़ा चला जा रहा हूँ, the track is my life in this world. और ये रास्ता ही जो है इस जमीन के ऊपर मेरी जिंदगी है। But where is my life? Where is my target? Where is my focus? मेरा वो निशाना कहाँ है, मेरी जिंदगी कहाँ है, What is my goal? मेरा निशाना क्या है? My goal is to go into eternal life. मेरा निशाना जो है वो मैं हमेशा की जिंदगी पा जाऊं। If I lose focus on my goal, I will lose my goal. अगर मैंने अपना निशाना जो है वो निशाना बदल दिया, तो मैं कभी भी उधार हमेशा का जीवन नहीं पा पाऊंगा। So, brethren, we should never lose focus to our goal. भाई और बहनों, हमें कभी भी अपना जो निशाना है वो नहीं छोड़ना चाहिए, Because our goal is to go back to God. हमारा निशाना है परमेश्वर की तरफ वापस मुड़ आए। And God has promised us eternal life. और प्रभु ने वादा किया है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, And that eternal life is in His Son. और हमेशा की जिंदगी उसके पुत्र में है। We will read here 2-3 scriptures here and then we will finish. हम अब 2 और 3 आयतें पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये बंद करेंगे। Let us go to 1 John. आइए हम योना की अंजील, पहला योना पढ़ते हैं, योना की पहली पत्री। 1 John. पहला योना योना की पहली पत्री। Yeah, I will just tell which chapter. मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा अध्याय है। योना की पहली पत्री We will read few verses here and from 1 John. हम कुछ आयतें पढ़ेंगे, पहला योना उससे कुछ आयतें पढ़ेंगे। A few verses from chapter 5 of 1 John. पहला योना और उसका 5 अध्याय में जाएंगे हम। पहला योना और उसका 5 अध्याय, पहला योना। First, we will read the first verse. और हम पहली आयत पढ़ने जा रहे हैं। Whosoever believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves him who begot also loves him who is begotten of him. जिसका यह विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। देखिए, ये बात कनेक्शन कर रही है। इसमें कई सारी आयतें हैं जो कनेक्ट कर रही हैं बाइबल की बहुत सारी आयतों को। वो बता रहा है, he is telling here, whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. जो ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, ये बता रही है। And everyone who loves him who begot also loves him who is begotten of him. और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। Now what does this mean? इसका क्या मतलब हुआ? That if you love God, अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, then you will also love his son Lord Jesus Christ. तो आप उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह से भी प्रेम रखेंगे। And who is the begotten Jesus Christ? और प्रभु यीशु मसीह कौन है जो एकलौता पुत्र है? He is the word of God. वो परमेश्वर का वचन है। So if you love God, you will love God's word.
अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आप परमेश्वर के वचन से प्रेम रखेंगे। And see what he says in verse number 2. और देखिए 2 आयत में प्रभु क्या कहते हैं। By this we know that we love the children of God, when we love God and keep his commandments. जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। Amen. This is the substance, this is the gist of his commandments he has spoken here. और देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Now here he says, for this is the love of God, that we keep the commandments, and his commandments are not burdensome. Verse 3. क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञा को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। Amen. Amen. Now he says, if we go to now we will read 2-3 verses. These are very, very important verses, brethren. Please see from the verse 11. और हम 11 आयत से पढ़ेंगे, 2-3 वर्ष और पढ़ेंगे। 1 John chapter 5 verse 11 onwards we are reading now one by one. पहला योना उसका 5 चैप्टर और उसकी 11 आयत से हम पढ़ेंगे। This is the testimony that God has given us eternal life, and the life is in his Son. हम और वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये अनंत जीवन उसके पुत्र में है। Brethren, put this verse deep into your heart. प्यारे भाई और बहनों, इस कलाम को अपने दिल की गहराई में ले लें। Engrave this in your heart. और अपने दिल में ये इसको रख लें। And if we live our life with these facts, with this understanding, we will never go wrong. We will never miss focus on our destination. We will never be on the wrong road, and we will go to heaven. अगर हम इस कलाम को अपने दिलों में रख लेंगे, हम कभी भी निशाना नहीं अपना खराब करेंगे, अपना रास्ता नहीं बदलेंगे और अपना हम फोकस है जो नहीं बदलेंगे। Now here John is writing this letter to Christians. और ये योना जो है ये मसीहियों को, विश्वासियों को पत्र लिख रहा है। And he uses the word testimony. और ये देखिए वो कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहा है, गवाही। Testimony means you have seen something, you have believed something, you know something, and now you're talking about that. गवाही का मतलब ये है कि आपने क्या देखा है और क्या सुना है और क्या उस पर विश्वास करते हैं, आप वो गवाही होता है। So what is the testimony he's talking about? और ये कौन सी गवाही है जिसके ऊपर योना बात कर रहा है? He says, God has given us eternal life, and this life is in his Son. वो कहता है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये अनंत जीवन उसके पुत्र में है। What did the Son do? What God did through the Son? क्या किया? The Son gave his blood. परमेश्वर ने पुत्र के द्वारा, The Son gave his blood in place of my sins. परमेश्वर के पुत्र ने अपना खून हमारी जगह अपना खून बहाया। God sacrificed the pure blood which was in the body of Jesus Christ, where Holy Spirit was living fully. God had to sacrifice that body for me and you. प्रभु के उस पुत्र ने कुर्बानी दी, लहू बहाया और परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके अंदर रहता था, उसने हमारी खातिर अपना पवित्र लहू बहाया। So that mine and your blood should be purified. ताकि मेरा और आपका जो खून है वो पवित्र हो जाए। So that we take the token of the blood of that lamb into my heart, into my doorpost, and then I will be spared. और इस ताकि हम परमेश्वर का वो चिन्ह जो निशान है अपने दिलों में ले लें। My doorpost is my heart. और मेरा दिल का जो दरवाजा है, वो दरवाजा जो है वो मेरा दिल है। That blood is the token of the sacrifice that God wants to bring me back to eternal life. और जो परमेश्वर का दिया हुआ चिन्ह है, प्रभु परमेश्वर का लहू जो है हमारे लिए चिन्ह है, जिससे द्वारा हमें परमेश्वर जो है अपने साथ लेके जाए। Please connect it with verse 12. आइए 12 आयत को साथ जोड़ें।
He who has the Son, he has eternal life. He who does not have the Son, he does not have eternal life. जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। God cannot be more clear than this, brethren. इससे ज्यादा परमेश्वर और साफ नहीं कर सकता। John has not written it by his own vocabulary, by his own knowledge. यूहन्ना ने अपनी सोच से, अपनी समझ से ये पत्री नहीं लिखी है। This is the inspired word by the Holy Spirit. ये प्रभु के पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर लिखी गई है। Holy Spirit has told John to write like this. पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के दास यूहन्ना को प्रेरित किया ये लिखने And के Holy लिए। Spirit is God. और पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर है। He says, he who has the Son, he has the life. He who does not have the Son, he does not have the life. और देखिए वचन कहता है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास अनंत जीवन नहीं है। And one more verse we are going to read here, verse 13, because they are all connected. इसके साथ हम 13 आयत पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि ये भी उस विषय के साथ मिलती है। These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of Son of God. मैंने तुम्हारे जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। आमीन। Continue. Have you finished the whole verse? Yes, I have. Okay. Yes. So now we have seen in the verse 13, John says, if you believe in the name of the Son of God, so we must know what is the name of the Son of God. जैसे कलाम में लिखा कि परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करो, तो परमेश्वर का पुत्र कौन है? We must know his name. हमें उसका नाम पता होना चाहिए। Acts 4:12 says, there is no other name in which we have the salvation except the name of Lord Jesus Christ. प्रेरितों के काम उसका 4:12 में लिखा है कि इस स्वर्ग के नीचे और इस पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके नाम के उद्धार हो। And he says, if you believe in the name of Son of God, then you will know, not that you will hope or you will think, no, or you will guess, no. He says, you may know that you have eternal life. और लिखे कलाम में लिखा है कि जिसके पास परमेश्वर के पुत्र का नाम, जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं उनके पास अनंत जीवन है। This is our goal. This is our goal, to go into eternal life. Why are we here? To go into eternal life, not to live in some good countries or eat good food and live a long life. No. यही हमारा निशाना है, यही हमारा निशाना है। ये नहीं है कि हम अच्छे देशों में रहें, अच्छी जिंदगी जिए, अच्छा खाना खाएं, ये हमारा निशाना नहीं है। Because we can go from this world any moment, only God knows. और हम ये इस पल को, जो इस कलाम को हम साइड पे नहीं रख सकते। But once we go, what happens then? और हम जानते हैं कि ये क्या कहता, क्या हो सकता है। Then we cannot change our route. We cannot change our road. और हम जो है अपना रास्ता नहीं बदल सकते। We can only change our road while we are yet living in this world. और हम तभी अपना रास्ता बदल सकते हैं और अगर हम इस कलाम में रह रहे हैं। If we die on a wrong road, we will go to hell. अगर हम गलत रास्ते पे चलते हुए मर गए तो हम जो है नरक में जाएंगे। We will have to stand in the judgment and face the punishment. फिर हम न्याय वाले दिन प्रभु के सामने खड़े होंगे और अपने गुनाहों का हिसाब देंगे। But if we have Jesus Christ today with us, अगर प्रभु यीशु मसीह आज हमारे साथ है, Jesus Christ is the way, प्रभु यीशु मसीह रास्ता है, and Jesus Christ is the word of God, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का कलाम वचन है, and the way is showing to us through the word of God. और प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें रास्ता दिखा So रहा if we है। stay and follow the word of God, और अगर हम उस रास्ते पे रहें और परमेश्वर के कलाम के पीछे then we चलते will रहें, change our road. और तब जाके हम अपने रास्ते को बदल सकते हैं। Then we have eternal life. तब हमें हमेशा का अनंत जीवन मिलेगा। Verse 20. और आइए 12 आयत पढ़ें। Verse 20, 20. ओके आइए हम 20 आयत पढ़ें। And we know that the Son of God has come and given us as an understanding that we may know him
who is true, and we are in Him who is true, in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। Amen. Amen. This verse 20, brethren, please, when you go back home and in everyday Bible study, please read these verses again and again and again and again with prayer, and may the Lord give us the revelation and meaning what He says here. The Son of God has come and given us understanding. We have received the understanding through Jesus Christ, that we may know that who is true. मेरे भाई और बहनों, जब आप घरों में जाएंगे इस आयत को साथ लेके जाएं और इसे बार बार पढ़ें और अपनी हर बाइबल स्टडी में इसको पढ़ें, तब परमेश्वर आपको इस कलाम की समझ देगा और फिर हम इस कलाम का मतलब समझ आएंगे कि अनंत जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह में है। He says that we may know Him who is true. लिखा है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया, उसने हमें समझ दी है कि सत्य को पहचाने। And we are in Him who is true. और अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। Now how we can be in Jesus? हम कैसे प्रभु यीशु मसीह में हो सकते हैं? कैसे? Where is Jesus today? आज प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? He is in which form? वो किस रूप में है आज? He is in the form of the Holy Spirit inside us. वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर है। And what is He doing? वो क्या कर रहा है? He is giving us an understanding. वो हमें समझ दे रहा है। So the Holy Spirit is giving us understanding of what? और पवित्र आत्मा हमें किस चीज की समझ दे रहा है? Understanding of what is true. समझ दे रहा है कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। So we understand the truth through the inspiration of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम जानते हैं कि सत्य क्या है। And where is the truth? और सत्य कहाँ है? Truth is in His Word. सत्य उसके वचन में है। Because Jesus is the Word. प्रभु यीशु मसीह वचन है। The Holy Spirit is giving us the understanding to know Jesus, and then He says, in His Son Jesus Christ, this is the true God and eternal life. और पवित्र आत्मा में अगुवाई दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह अगुवाई दे रहा है, उससे हम जान जाते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। So we know who is Jesus Christ. और हम जानते हैं कि कौन है प्रभु यीशु मसीह। He is the true God वो सच्चा परमेश्वर है and eternal life. और हमेशा की जिंदगी है। So if we are found in Jesus, we have eternal life. जब हम प्रभु यीशु मसीह को पा लेते हैं तो हम हमेशा का जीवन पा लेते हैं। And also we know God. और तब हम परमेश्वर भी जान जाते हैं कि And परमेश्वर who कौन है। and where is God? और परमेश्वर कहाँ है? Who is Jesus Christ? यीशु मसीह कौन है? Jesus Christ is the Word of God. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। So if we are in Jesus Christ, we are in the Word of God. जब हम प्रभु यीशु मसीह में होते हैं, हम परमेश्वर के वचन में होते हैं। And then we have eternal life because now we know God. तब हमारे पास अनंत जीवन होता है क्योंकि हम परमेश्वर। This is the correct road to go to eternal life and heaven, brethren. यही सही रास्ता है जो हमें स्वर्ग में प्रभु के राज्य में लेके जाता है। Only those who continue on this road and without changing to any wrong roads and wrong teachings, only they will sustain eternal life and meet God after we leave this world. जो भाई बहन जो इस रास्ते पे सही रास्ते पे चल रहे हैं, सिर्फ वही लोग जो हैं उद्धार पाएंगे, वही प्रभु के राज्य में जाएंगे जिन्होंने ये सत्य का रास्ता नहीं छोड़ा न बदला। This chance is given to us only one time. ये हमें सिर्फ एक बार मौका मिला गया है, एक बार ये मौका दिया गया हमें। Once we physically leave this world, there is no chance of any repentance or correction. जब जिस दिन हम ये शरीर छोड़ जाएंगे, हमारे पास कोई मौका नहीं है तौबा का, हमारे पास कोई मौका नहीं है अपने गुनाहों को अंगीकार करने का। This is the final word and the final warning God has given to us in His Word. ये प्रभु की आखिरी चेतावनी है जो प्रभु हमें दे रहा है।
God has done everything for us. परमेश्वर ने जो भी करना था हमारे लिए कर दिया है परमेश्वर It ने। is up to us to accept it or reject it. ये हमारे ऊपर है कि हम उसे कबूल करते हैं या उसको छोड़ देते हैं। If we accept it, अगर हम उसे कबूल करते the हैं good news is that we have eternal life. तो अच्छी खबर ये है कि हमारे पास हमेशा का जीवन है। Let us not even think of rejecting it. और इसके ऊपर मत सोचें कि हम ठुकराए जाएंगे। That is very dangerous. ये बहुत बुरा है To ठुकराया reject जाना। Jesus is very dangerous. प्रभु यीशु मसीह को ठुकराया जाना बहुत ही To खतरनाक reject है। Jesus is to reject word of God. प्रभु यीशु मसीह को ठुकराना परमेश्वर के वचन को ठुकराना To है। make unnecessary discussion, debates, arguments about the word of God is a sin. बिना मतलब की बहस करनी, परमेश्वर के कलाम की बिना मतलब की बहस करनी जो है ये परमेश्वर के खिलाफ गुनाह है। We cannot debate, discuss Jesus Christ and God. हम परमेश्वर के ऊपर प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर बहस नहीं कर सकते। We have to believe it and accept it and follow it. हमें तो विश्वास करना है और कबूल करना है। May God bless us all, brethren. सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। I know the time has slightly gone little extra, तो मैं जानता हूँ कि थोड़ा ज्यादा समय ले लिया गया but I है। think because we also started late, there was some disturbance in the beginning. और हम जानते हैं कि शुरुआत हमने लेट की थी, कुछ गड़बड़ी या कुछ प्रॉब्लम आ गई But the word of God cannot be bound into limits, और परमेश्वर का वचन जो है वो बंधा हुआ नहीं है समय में। because the word of God does not live in the time dimension. परमेश्वर का वचन जो है वो समय में कभी नहीं फिट होता। In this world, we have a time dimension, इस दुनिया में हमारे पास समय की बंदिश है, but when we are in eternal life, we will be always in the presence of God. जब हम ये शरीर छोड़ जाएंगे, प्रभु के घर में जाएंगे, तो हम हमेशा ही प्रभु के सामने We रहेंगे। will have eternal fellowship with God and His फिर children. फिर हमारे पास हमेशा की संगति होगी प्रभु के साथ। Then we will not think we have to go to work, we have to have dinner, we have to have lunch, we have to sleep. No, all these problems will not be there. तब हम ये नहीं करेंगे कि हमने खाना खाना है, हमने सोने जाना है, हमने काम पे जाना है, ये सारी समस्याएं वहां पर नहीं है। We will be so much satisfied that we don't need these things in our glorious bodies, will not have this kind of human requirements. और जब हम ये उद्धार वाला वो प्रभु का वो बदन पालेंगे उठाए जाने वाला, तब हम हमारे जीवन में ये चीजें नहीं होंगी। We will not cry, we will not get tired, we will not get sleep. We will not need sleep, and we will be always happy and fresh in the Lord. उस शरीर में हम कभी नहीं थकेंगे और हम हमेशा ही संतुष्ट होंगे। उस शरीर में कोई थकावट नहीं होगी और हमेशा ही आनंद करेंगे। Jesus, when he was in the human form, he used to get tired, he used to cry, he used to be thirsty and hungry because he was also a human being on earth. प्रभु यीशु मसीह खुद जब शरीर में था तो कई बार थक जाता था, भूख लगती थी, खाना खाता था, तो कई बार आराम करता था। But in his when he went into the glorious body, he is in the spirit form, then he doesn't need all these things today. परंतु जब वो अपने उद्धार वाले जलाल वाले शरीर में गया तो वो थकता नहीं है, टायर्ड नहीं होता, वो सोता नहीं है कभी। आमीन। Because he is God. क्योंकि वो परमेश्वर है। God doesn't go on holiday, God doesn't rest. परमेश्वर कभी छुट्टियों पर नहीं जाता, कभी परमेश्वर आराम नहीं करता। God had human requirements when he was in the human form. वो उसको तभी ये जरूरत होती है जब वो शरीर में होता है। But at the same time, the God as the Spirit was all over the universe at the same time. एक समय में ही वो जमीन के ऊपर और सारी कायनात में एक ही समय में वो होता है। God bless you all, brothers and sisters. Now we are finishing our meeting now. सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। हम अपनी सभा खत्म करने जा रहे हैं। May God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दे। And we will now pray with the brother Hari Khadka for closing of this prayer meeting. I'm in this platform meeting. हम भाई हरि खड़का के साथ प्रार्थना में भाई हरि खटका के साथ हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और अगर हम में से कोई बीमार है, जैसे सिस्टर पूनम जो है, वो उनकी कज़न है सिस्टर संगीता की, वो बीमार है, वो लॉग इन कर रही थी पर वो बीमार है, उनको हम प्रार्थना में याद करेंगे। और सभी लोगों के, सभी के परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे, जितने भी लोग हैं और जो नहीं भी आ पाए उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। ब्रदर हरि खटका प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। भाई हरि खटका।
हालेलुया। महान परमेश्वर पिता, प्रिय प्रभु येशू ख्रीष्टको पवित्र नाममा हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ। हो परम प्रभु परमेश्वर पिता, अब्राहम इस्हाक याकूबका शक्तिशाली परमेश्वर पिता बाबु, हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ। प्रिय परमेश्वर, आजको यो आशिषमय दिन प्रभु, यो जुन मिटिङको प्लेटफर्ममा प्रभु तपाईले हामीलाई एटेन्ड गराउनु भयो परमेश्वर, त्यसको निम्ति हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। हो प्रभु मेरा परमेश्वर, साँच्चै नै प्रभु आज संसार आक्रान्त छ कोभिड-19 नामक यो दुष्ट महामारी रोगबाट प्रभु, तर तपाईले हामीलाई आजका दिनदेखि हामीलाई सुरक्षित राख्नु भएको छ। संसारको आँकडा हेर्ने हो भने 30-35 लाख भन्दा बढी मानिसहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन् प्रभु, तर हामीलाई तपाईले सुरक्षित राख्नुभयो, जसको कारण तपाईँ पवित्र परमेश्वरको वचन आज हामी सुन्न पायौँ प्रभु, तपाईका दासका मुखार बिन्दबाट। हालेलुया। पिता, म धन्यवाद दिन्छु प्रभु, आज तपाईले जुन पवित्र वचन आफ्नो दासको मुखबाट हामीलाई वचन रूपी मन्नान खुवाउनु भएको छ प्रभु, हामी तृप्त भएका छौँ प्रभु। हालेलुया। त्यो चेतावनी युक्त वचनबाट साँच्चै नै प्रभु जुन वचन आज हामीले पाएका छौँ, हो प्रभु परमेश्वर, जसका साँच्चै नै प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईमा अनन्त जीवन छ प्रभु, जसले तपाईलाई दिलो ज्यानले ग्रहण गरेको छ, विश्वास गरेको छ र तपाईको पवित्र वचनको अनुसार चिन्हलाई पछ्याएर हिँडेको छ, साँच्चै नै आज्ञा पालन गरेको छ। हो प्रभु, त्यसका साथमा तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु, अनि साँच्चै नै उसका साथमा अनन्त जीवन छ। जसले तपाईँको वचनमाथि विश्वास गर्दैन, तपाईँलाई पछ्याउँदैन भनेदेखिलाई उसको साथमा तपाईँ रहनुहुन्न र उसको साथमा अनन्त जीवन पनि छैन। साँच्चै नै प्रभु परमेश्वर, तपाईले साह्रै नै मिठो वचन दिनुभएको छ प्रभु, किनकि प्रेरित 4:12ले भनेको छ, स्वर्गमुनि मानिसको बिचमा अरू कुनै नाम दिइएको छैन। साँच्चै नै मानिसले उद्धार र मुक्ति पाउनको निम्ति, जीवन पाउनको निम्ति प्रभु तपाईको नाउँभन्दा अर्को कुनै नाउँ छैन, मात्र तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँ नै त्यो सर्वोपरि नाउँ हो, त्यो पवित्र नाउँ हो, त्यो सामर्थ्य नाउँ हो, जसमा जीवन छ, जसमा शान्ति छ, आनन्द छ, चङ्गाई छ, जसमा सर्वस्व छ। हालेलुया। सम्पूर्ण आशिषहरू लुकेको छ प्रभु। यस्तो मिठो वचन तपाईले दिनुभएको छ र साँच्चै नै प्रभु यो अन्त्यको समय छ, तपाईँ आउनलाई ढिलो गर्नु हुँदैन पक्कै पनि, किनभने तपाईले प्रतिज्ञा गरिसक्नु भएको छ। हिब्रूको पुस्तकले भन्छ, आउनेवाला आउनु हुने नै छ, उहाँले बिहालो गर्नुहुने छैन भनेर प्रश्न लेखिएको छ। यसबाट हामी जान्दछौँ प्रभु तपाईको पुनरागमन अत्यन्तै नजिक छ र यो घडी, यो समय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। साँच्चै नै यो अनुग्रहको समय। हालेलुया। जसले पश्चातापी मनले तपाईलाई ग्रहण गरेर तपाईका वचनलाई अमल गरेर हिँड्दछ, पालन गरेर हिँड्दछ र अरूलाई पनि यही सत्यको मार्गमा डोर्याउँछ भनेदेखिलाई साँच्चै नै उसको साथमा तपाईँ रहनुहुनेछ र उसले अनन्त जीवन पाउनेछ। यस्तो मिठो वचन प्रभु, साँच्चै नै प्रभु तपाईले आफ्नो दासबाट आज बस्किनु भएको छ हामीलाई र यो प्लेटफर्ममा जति पनि उपस्थित भएका छौँ, हामी संसारका विभिन्न देशमा रहने, जहाँ रहे तापनि भौगोलिक दूरीमा हामी टाढा भए तापनि प्रभु तपाईमा हामी एक छौँ प्रभु, र जसको कारण आज यो सम्भव भएको छ प्रभु। धन्यवाद दिन्छु प्रभु तपाईलाई। र यो मिटिङ निर्विघ्नताका पूर्वक सम्पन्न भएको छ, कुनै गडबडी नभइकन सम्पूर्ण वचन जस्ताको तस्तै हामीले सुन्न पाएका छौँ, रिपोर्ट गर्न पाएका छौँ प्रभु। हालेलुया। त्यस निम्ति म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु, ताकि हामी फेरि यसलाई तपाईको दासले भने जस्तै अध्ययन गर्नको निम्ति, मनन गर्नको निम्ति, हालेलुया, त्यो अनुकूलता दिनुभएको निम्ति प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिदछु। र संसारका विभिन्न कुनामा भएर पनि प्रभु तपाईको यस मिटिङमा आबद्ध भइकन जति छोराछोरीहरूले तपाईको वचन सुन्नु भएको छ, यो मिटिङमा सहभागिता जनाउनु भएको छ, उहाँहरू प्रत्येकको जीवनमा प्रभु तपाईको आशिष, अनुग्रह, कृपा दृष्टि, दया दृष्टि रहेको परमेश्वर। र फेरि पनि कुनै कारणवश आजको यस मिटिङमा पवित्र सेवाकाईमा उपस्थित हुन नपाउनु भएका तपाईका अरू छोराछोरीहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई समेत पनि प्रभु तपाईले आशिषित गरिदिनुहोस् परमेश्वर। धन्यवाद दिन्छु प्रभु। फेरि पनि यो जुन बहिनी पुनम जो बिमारी हुनुहुन्छ प्रभु, उहाँको निम्ति म पुरा प्रार्थना गर्छु प्रभु। लगायत जति रोगी बिमारीहरू हुनुहुन्छ सबैको निम्ति म प्रार्थना गर्छु परमेश्वर, किनकि यहाँ डाक्टरका पनि डाक्टर तपाईँ हुनुहुन्छ र वैद्यका पनि वैद्य तपाईँ हुनुहुन्छ।
यसर्थ मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर तपाईँका ती चङ्गाईका बाहुली पछाडिकन तपाईँका ती जिमारी छोराछोरीहरूलाई छोइदिनुहोस् परमेश्वर, र ताकि उनीहरूले चङ्गाई प्राप्त गर्न सकुन् प्रभु। ओ प्रभु मेरा परमेश्वर, आत्मिक चङ्गाईको आवश्यक पर्ने छोराछोरीहरूलाई आत्मिक चङ्गाई दिनुहोस् प्रभु, शारीरिक चङ्गाईको आवश्यक पर्ने छोराछोरीहरूलाई शारीरिक चङ्गाई दिनुहोस् प्रभु, र स्वस्थ शरीरबाट तपाईँका छोराछोरीहरूले तपाईँलाई महिमा दिन सकेका हुन् प्रभु, र तपाईँमा लवलीन भएर रहन सकेका हुन् प्रभु, र तपाईँले चाहनु भए अनुसारको जीवन व्यतीत गर्ने त्यो अनुकूलता प्रत्येक छोराछोरीहरूलाई दिनुहोस् भनिकन माग्दछु प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु, जीवन गुजारा गर्नको निम्ति तपाईँका छोराछोरीहरूले जसले जे जस्ता पेसा अवलम्बन गर्नुभएको छ प्रभु, सबैका काममा पेसामा आशिषित गरिदिनुहोस् परमेश्वर, सबै परिवारलाई आशिषित गरिदिनुहोस् प्रभु। र विशेष गरिकन यस प्लेटफर्ममा जति पनि आबद्ध तपाईँका छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ प्रभु, सबैको जीवनमा म त चाहन्छु प्रभु आत्मिक बेदारी ल्याइदिनुहोस्। हालेलुया, किनकि आत्मिकता बिना जीवन सम्भव छैन। हालेलुया। त्यसकारण हे मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर, तपाईँ पवित्र आत्मा स्वरूप हुनुहुन्छ, र त्यसर्थ प्रभु आत्मिक जीवनमा हामीलाई अगाडि बढाउनुहोस् परमेश्वर। हो, किनभने हामी अज्ञानी छौँ प्रभु, हाम्रा टिचर भने पनि तपाईँ नै हो, शिक्षक गुरु जे भने पनि तपाईँ, प्रभु परमेश्वर पनि तपाईँ, र हाम्रो निम्ति सर्वस्व तपाईँ हुनुभएको हुनाले प्रभु तपाईँको धार्मिकता सत्यता र पवित्रताको मार्गमा हामीलाई डोर्याएर प्रभु साँच्चै नै प्रभु तपाईँ हो माथि मध्य आकाशमा आउनु हुँदाखेरि प्रभु संसारबाट उठाइने मध्येका छोराछोरीहरू मध्येमा हामी पनि पर्न सकौँ प्रभु। त्यही लक्ष्य र भिजनका साथमा हामीलाई अगाडि बढ्नमा प्रभु सहायता मद्दत गर्नुहोस् प्रभु, किनकि हामीले जुन विश्वास तपाईँमाथि गरेका छौँ प्रभु, त्यो विश्वासलाई सिद्धतामा पुर्याउने केवल तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। धन्यवाद छ प्रभु, सारा आदर, सारा मान, सारा वैभव, सारा पराक्रम, सारा शक्तिका मालिक प्रभु परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै आशिष माग्छु सत्य प्रभु यीशु ख्रीष्टको पवित्र नाममा। आमेन 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 आमेन। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। और we finished today's meeting and we pray for the next meeting. God willing, we will have again next Sunday. Please switch off mic, brother. Thank you. Please switch on mic. Mic, brother. Okay. Mic. प्रभु का बहुत धन्यवाद हो इस अच्छी प्रार्थना के लिए। भाई हरि खटका, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू dear brother Hari Khatka. We thank God for this time we could spend together, and God has spoken to us from his word. We must stick to his word so that we follow the right track and we follow Jesus Christ, who is the way, so that we reach our destination, which is the heavenly life, which is the eternal life. May God bless you all, and now we can talk to each other and greet each other. God bless you, brethren.